Hello everyone, welcome to Tour Academy. I hope you are all well, and today I am going to explain respiration, that is small portion of life processes. Life processes का एक part है respiration. Respiration, as you know, is a life process, and इससे पहले already I have explained about nutrition in plant as well as in animals. So today I am going to explain respiration. आज के सेशन में मैं सिर्फ ब्रीफली आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एक्सप्लेन करके बताऊंगी, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट यू शुड बी फेमिलियर विद दिस टर्म, दैट इज व्हाट इज रेस्पिरेशन. आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख के रखी है इसकी डेफिनेशन. आप हमेशा यही इसकी डेफिनेशन लिखेंगे रेस्पिरेशन की, कि व्हाट इज रेस्पिरेशन. इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड बायोकेमिकल प्रोसेस in which food gets oxidized to form carbon dioxide, water vapors and ATP. ATP means adenosine triphosphate, जो आपकी बुक्स में आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा. ATP is the short form of adenosine triphosphate. It is a form of chemical energy. So in the definition of respiration you will write the process in which complicated biochemical process in which food gets oxidized to form carbon dioxide gas, water vapors and ATP energy in the form of ATP. So this is the definition of respiration. Now what are the different types of respiration? Respiration हमारा दो टाइप का होता है. एक तो होता है aerobic respiration, and number two anaerobic respiration, right? So we have two types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration, as the name suggests, takes place in the presence of sufficient amount of oxygen, so that is known as aerobic respiration. On the other hand, we have anaerobic respiration which takes place in the absence of oxygen. Simple straightforward इनका आंसर है. Aerobic respiration का मतलब है which takes place in the presence of oxygen, and anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen, right? So now we explain the detail of respiration, aerobic as well as anaerobic. So पहले मैं आपको बताती हूँ aerobic. What is aerobic respiration? अभी जैसा मैंने बताया कि it is a very complicated process which takes place in the presence of oxygen to release lot of energy, and that energy is used in our daily activities. तो कहाँ से ये स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है आपका ग्लूकोज से. ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में कहाँ से आता है? ग्लूकोज आता है व्हेन यू ईट कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स की तीन फॉर्म्स होती हैं, शुगर, स्टार्च एंड सेल्यूलोज. सेल्यूलोज से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है बिकॉज इट डज नॉट गेट डाइजेस्टेड इन आवर स्टमक, इन आवर बॉडी एंड डज नॉट गिव एनी एनर्जी. तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट्स. एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके शुगर एंड स्टार्च. व्हाटएवर इट इज, वेदर इट इज शुगर आप खाते हो या आप स्टार्च वाला फूड खाते हो, अल्टीमेटली इट गेट्स डाइजेस्टेड इन ग्लूकोज. अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में बदल जाता है. इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर एज वेल एज स्टार्च. जैसा भी आप खाना खाओ, अगर उसमें स्टार्च है या शुगर है, ultimately in the presence of different enzymes it gets converted into glucose. This is the simplest form of your carbohydrate and instant energy giving substance है ये ग्लूकोज. और इस ग्लूकोज जब हमारे बॉडी में होता है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अल्टीमेटली योर कार्बोहाइड्रेट गेट्स डाइजेस्टेड और ग्लूकोज उससे बनता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को एब्जॉर्ब करती है, डाइजेस्टेड फूड को, तो ग्लूकोज इज ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और अल्टीमेटली ये ग्लूकोज आपके ब्लड में जाता है और ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू ईच एंड एवरी सिंगल सेल.
हर सेल में आपका ग्लूकोज जाता है, कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है इसको। तो ये जो ग्लूकोज हमारा सेल में चला गया, ब्लड लेके गया, दिस ग्लूकोज एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म पार्ट। आपको मालूम है कि ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस होता है और दिस इज द साइटोप्लाज्म। दिस इज द जेली लाइक सब्सटेंस नोन एज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। These cell organelles are known as mitochondria. Last year also in class 9 you must have studied about mitochondria, function of mitochondria. Mitochondria को power house भी कहते हैं because यहाँ पे this is the site of energy production. इनमें mitochondria में energy is produced during respiration. तो now come to the point, हमने ग्लूकोज लिया, ब्लड में गया, ब्लड उसको कहाँ लेके गया? सेल्स में ले गया। और सेल्स के कौन से पार्ट में? ये जो हम साइटोप्लाज्म बनाते हैं, साइटोप्लाज्म में आपका ग्लूकोज चला गया, साइटोप्लाज्म में, राइट। तो साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज गया तो इस ग्लूकोज में क्या चेंज आया? दिस ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू a very complicated organic compound that is known as, उसको क्या बोलते हैं? पाइरूवेट। Either it is known as pyruvate. साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज चला गया and this in the cytoplasm only glucose gets converted into pyruvate. Pyruvate is also known as pyruvic acid. इसको pyruvic acid भी बोलते हैं। So either you can write pyruvate and you can write pyruvic acid also, right? And this process, what is this process in which glucose gets converted into pyruvate or pyruvic acid in the cytoplasm is known as glycolysis. Glycolysis or glycolysis you can say. So again I will repeat, glucose in the cytoplasm gets converted into pyruvate, also known as pyruvic acid. This whole process, मतलब कि conversion of glucose into pyruvate or pyruvic acid in cytoplasm is known as glycolysis, right? Now इसके बाद डिपेंड करता है पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलती है कि नहीं मिलती है। इट मीन्स कि फेट ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीजन अमाउंट। अगर तो ऑक्सीजन मिलती है तो रिजल्ट कुछ और होगा। अगर पायरुवेट को इट डजंट गेट ऑक्सीजन, in the absence of oxygen the result will be different, then it will become anaerobic respiration. तो अभी हम बात कर रहे हैं aerobic respiration की, right? So pyruvate when it gets enough quantity of oxygen, इससे आपको एक बात पता लगी कि साइटोप्लाज्म तक जब तक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, पायरुवेट बनता है, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ तक हमारे बॉडी में हमारे सेल्स को ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन अभी तक नहीं मिली है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आगे पायरुवेट का जो फेट है, फ्यूचर है, डिपेंड करता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो अभी इसको हमने ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी, ऑक्सीजन भी ब्रीद इन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब पायरुविक एसिड को मिली, देन इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे इसको, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। ये पहले तो हीट एनर्जी बनेगी इसमें। ये जो हीट एनर्जी इसमें बनी है, सम ऑफ द हीट एनर्जी विल रिमेन इन द बॉडी एज सच टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। सम ऑफ द हीट एनर्जी वी ब्रीथ आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, हम ब्रीथ आउट कर देते हैं एंड उस कुछ हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कुछ हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन द बॉडी। और ये जो प्रोसेस होता है कि जब कार्बन पायरुविक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड केमिकल एनर्जी बनती है, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल।
तो दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक तो ग्लाइकोलिसिस in which glucose gets converted into pyruvate or pyruvic acid in the cytoplasm, and another process, another part of the respiration is pyruvate gets enough amount of oxygen to convert CO2, carbon dioxide, 6 molecules of water and lot of heat energy, जिसमें से कुछ energy gets converted into chemical energy और उस chemical energy को बोलते हैं ATP, adenosine triphosphate। इसको क्या बोलते हैं? adenosine triphosphate। This is the chemical form of energy and this whole process is known as Krebs cycle, and where it takes place? It takes place in the mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी गिविंग सेल ऑर्गेनल्स है हमारे सेल के अंदर। अभी मैंने बताया जैसे ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये तो साइटोप्लाज्म है। तो इस साइटोप्लाज्म में तो ग्लाइकोलिसिस हुआ, पाइरुवेट बना, और जो मैंने आपको बताए थे अभी, दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स, दीज आर नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इन दीज माइटोकॉन्ड्रिया दिस होल प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, यानी कि पाइरुवेट इनमें माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ऑक्सीजन उसको मिलेगी, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर्स एंड केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP बनेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी स्टोर होती है, और स्टोर होके whenever our body requires, this ATP gets converted into ADP। ADP means adenosine diphosphate, और हमें एनर्जी सप्लाई होती है। So this is the whole process of aerobic respiration। तो अभी मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पाइरुविक एसिड बनता है उसका जो फेट है इट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीजन। अगर तो आपके पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलती है तब तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स और एटीपी बनता है। एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं बाय 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के बनते हैं, and that energy is used in our daily activities। लेकिन अगर इस पाइरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, now we are talking about anaerobic respiration। anaerobic respiration तो अगर ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में बिना ऑक्सीजन के ग्लाइकोलिसिस होता है एंड पाइरुवेट बनता है, ये तो इतना प्रोसेस तो आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। यहाँ से डिपेंड करता है इफ दिस पाइरुविक एसिड गेट्स ऑक्सीजन देन आपको 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स बनता है। लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट gets converted into alcohol and carbon dioxide। अल्कोहल कौन सा? C2H5OH, 2 molecules of C2H5OH, this is known as ethyl alcohol। ethyl alcohol बोलते हैं इसको, और it is also known as ethanol। either you can say ethyl alcohol और ethanol, one and the same thing, और इसका फॉर्मूला है C2H5OH। this is alcohol। तो if your pyruvic acid does not get oxygen or in the absence of oxygen, this pyruvic acid it forms alcohol plus carbon dioxide gas plus only 2 molecules of ATP। क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट जैसे, बैक्टीरिया जैसे स्मॉल एनिमल्स में, सिंपल एनिमल्स में होता है, दैट इज व्हाई
इट रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ हीट एनर्जी। इसको बहुत थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इतनी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होती है यीस्ट में, बैक्टीरिया में। तो विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। सो समरी क्या बनी अब इसकी कि ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ योर सेल, उसमें ग्लाइकोलिसिस होता है, पायरुवेट बनता है। इतना तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हुआ, बट क्योंकि इट इज नॉट गेटिंग ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नाउ पायरुवेट विल ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिटिल बिट ऑफ ATP, that is energy, in the form of adenosine triphosphate, only 2 molecules. And this respiration takes place in yeast or in bacteria. This process where ethanol or carbon dioxide gas is produced, this whole process is known as fermentation. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? fermentation, in which glucose gets oxidized in the absence of oxygen, ultimately to form ethanol or ethyl alcohol and carbon dioxide, and very small amount of ATP is formed, that is adenosine triphosphate, only 2 molecules. So yeast में, bacteria में this much energy is enough, and this whole process is known as fermentation. In other words, you can say in anaerobic respiration also ग्लाइकोलिसिस तो होता है, पायरुवेट भी बनता है, क्रैश साइकिल नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया तक ये नहीं पहुंचता। पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही इट फॉर्म्स इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म होते हैं इसमें। सो दिस इज फर्मेंटेशन, ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। ईस्ट में होता है या बैक्टीरिया में होता है, एंड इट इज anaerobic respiration which takes place in the absence of ऑक्सीजन। लेकिन ये नहीं है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लोअर एनिमल्स, इन प्लांट लाइक यीस्ट या बैक्टीरिया में ही होता है। समटाइम्स यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन आवर बॉडी आल्सो दिस respiration, anaerobic respiration takes place in some special, under some special circumstances. कुछ एनिमल्स में भी anaerobic respiration होता है, तो हमारे बॉडी में भी sometimes under special circumstances anaerobic respiration takes place। और वो कब होता है कि when you do vigorous exercise, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, एथलीट्स हैं और या स्पोर्ट्स पर्सन हैं या vigorous exercise करते हो, then what happens, your oxygen is used rapidly। आपका फूड इतनी तेजी से, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है when you do vigorous exercise, तो at that time what happens, your glucose it gets oxidized rapidly to give more and more amount of energy, और आपके बॉडी में ऑक्सीजन घट जाती है या खत्म हो जाती है। आपके सेल्स में ऑक्सीजन इतनी पहुंच नहीं पा रही है जितनी यूटिलाइज हो रही है। इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपन्स कि ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में पायरुवेट तो बना यानी कि पायरुविक एसिड तो बना, लेकिन क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन इज गेटिंग यूटिलाइज्ड सो रैपिडली व्हेन यू डू विगरस एक्सरसाइज, देन ऑक्सीजन इज एब्सेंट। एंड है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में या दूसरे हायर एनिमल्स में। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपन्स, पायरुवेट का ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस होता है और बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बन जाता है and only 2 molecules of ATP. So again I will repeat, when we do rigorous exercise, sports person है, athletes है, बहुत ज़्यादा जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनके बॉडी में lot of energy is required, so rate of respiration also increases, और इतनी जल्दी आपकी ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है कि खत्म हो जाती है ऑक्सीजन। तो in that situation what happens, pyruvate breaks down in the absence of oxygen, that is anaerobic respiration होने लग जाता है, and in that situation normal products नहीं बनते, कुछ abnormal product बनता है, that is lactic acid।
Lactic acid being an acid, it starts accumulating in your muscles and this takes place in your muscles. कहाँ पर होता है ये आपकी? What is the site of this type of anaerobic respiration in us? Muscles में, हमारे muscles में होता है ऐसा. And this lactic acid, it starts accumulating in your muscles. एंड लैक्टिक एसिड तो एसिड है. जब एसिड आपके बॉडी में इतना एक्यूमुलेट हो रहा है, आपके मसल्स में एक्यूमुलेट होता है, तो उसके आपके मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं. एंड इट इज सो पेनफुल. सो दिस इज अनदर situation where anaerobic respiration takes place in our body, in human being, and not in human beings, sometimes in animals also, like lion है, tiger है, cheetah है, इनमें भी ये anaerobic respiration होता है when they run so fast to catch the prey. आपके शिकार को पकड़ने के लिए they run so fast, और उनमें भी जब वो इतना तेज दौड़ते हैं तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है कि बचती नहीं है ऑक्सीजन. थोड़े टाइम बाद वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते करते सब खत्म हो जाती है ऑक्सीजन. एंड आफ्टर दैट दिस प्रोसेस स्टार्ट्स. एनारोबिक रेस्पिरेशन उनमें भी होता है, उनके भी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है और इतनी थोड़ी अमाउंट फिर एनर्जी की प्रोड्यूस होती है उसमें. ओनली 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस एंड दे गेट टायर्ड, और एकदम से वो हेल्पलेस हो जाते हैं और वहीं पर खड़े हो जाते हैं. दे कैन नॉट रन फर्दर. और हमारे बॉडी में भी मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, पर इसका एक सॉल्यूशन भी है. इफ यू टेक बाथ विथ हॉट वाटर, वार्म वाटर, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन उससे ठीक हो जाता है और फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन हमारा ब्लड सर्कुलेशन वो करेक्ट हो जाता है. ब्लड सर्कुलेशन क्विक हो जाता है, रैपिडली होने लग जाता है हमारी बॉडी में, एंड इट विल सप्लाई मोर ऑक्सीजन और फिर वो क्रैम्प्स भी ठीक हो जाते हैं. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन एंड नंबर 2 एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन की मैंने इक्वेशन आपको बताई थी अभी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर्स एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं. एंड दिस एनर्जी वी यूज फॉर आवर एवरीडे एक्टिविटीज. ऑन द अदर हैंड एनारोबिक रेस्पिरेशन यू कैन से फर्दर 2 टाइप से वो होता है. एक तो ईस्ट में होता है. ईस्ट में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस पायरुविक एसिड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल या C2H5OH, इथाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, एंड ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP विल बी प्रोड्यूस्ड. और समटाइम्स व्हेन इन स्पेशल सिचुएशंस when we run fast या we do vigorous exercise, then glucose पायरुवेट तक तो बनता है, पर उसके बाद जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, खत्म हो जाती है ऑक्सीजन, सेल्स में नहीं पहुंचती इतनी तेजी से जितनी तेजी से हम यूज कर रहे हैं, देन इन आवर मसल्स लैक्टिक एसिड विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा. ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP विल बी फॉर्म्ड. इतनी थोड़ी एनर्जी में वी कैन नॉट डू मोर एक्सरसाइज. समटाइम कोलैप्स भी हो जाते हैं, अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं. कई बार स्पोर्ट्स पर्सन उनके मसल्स में क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं एंड इट इज सो पेनफुल. एंड उसके लिए आपको सोल्यूशन भी बताया कि यू टेक मसाज या हॉट वाटर से अगर आप बाथ लेंगे देन वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लग जाएगा और सप्लाई शुरू हो जाएगी. इट विल स्टार्ट सप्लाइंग इनफ ऑक्सीजन और ये क्रैम्प्स ठीक हो जाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. तो आज आपको मैंने सिर्फ एक छोटा सा पार्ट रेस्पिरेशन का बताया, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. इमीडिएटली इसके बाद आपको मिलेगा some questions based on these 2 topics, aerobic and respiration and anaerobic respiration के इसी के बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताया. So thank you so much for watching, and if you like this video please like and subscribe it, and I will give you more and more new topics. So thank you so much.